Alright, students, so in this video, we guys are going to cover 1 raised to power infinity form, which is a very, very important form. And we'll also cover some miscellaneous forms, right? Miscellaneous forms, which though are not very popular at JEE, especially JEE mains and in regional engineering exams, but still we'll do it. For example, infinity raised to power 0, 0 raised to power 0, 0 raised to power infinity type of forms. उनके हम थोड़े थोड़े examples देख लेंगे एक दो, जिससे हमें idea लग जाए that how it has to be done. But major of the time will be spent on this video on this important component, that is 1 raised to power infinity form, which is very very important. ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं with 1 raised to power infinity form. Alright, the next we have to do is a very important form is 1 raised to power infinity form. So 1 raised to power infinity form. So this is like a number which is approaching 1 raised to power infinity. We say approaching infinity और infinity एक ही बात होती है, ज्यादा नहीं. So इसमें मेजर फॉर्मूला कौन सा है? मेजर फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग. अच्छा, इसमें एक सबसे पहले बात याद रखिएगा दैट यू कैन नॉट वर्ड यूज कर रहा हूं, कैन नॉट यूज दी लॉ हॉस्पिटल रूल. लॉ हॉस्पिटल रूल सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होता है. तो इसका बेसिक फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम? लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाय एक्स. Did you notice 1 plus x, 1 plus x, x approaches 0, तो बेस क्या है? Approaching 1, raised to power 1 by x, as x approaches 0, 1 by x approaches infinity. इसका आंसर हो जाता है what? E. ये बेसिक फॉर्मूला यूज होता है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में. अब इसके बड़े सारे वेरिएशंस हो सकते हैं जो आप करना चाहें. तो जैसे अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, लेट्स से आई विल अगेन जनरलाइज. सो जनरलाइजेशन कुड बी दैट लिमिट x approaching a, it could be 1 plus fx raised to power 1 by fx. The answer will still come out to be e if fx approaches 0 as x approaches a, right? And ये बहुत ज्यादा यूजफुल जनरलाइजेशन है, इसको याद रखना है. एक और देखो इसी का फॉर्म क्या यूज हो सकता है, जबकि वो हम जनरलाइज फॉर्म में कर रहे हैं. यू जस्ट रिमेंबर दैट सर x अप्रोचिंग 0 होता है, ये आप लोग याद रखते हैं, बट ये गलत तरीका है किसी भी चीज को याद करने का. क्यों? अब वो देखना. अब अगर मैं कहता हूं, सॉरी, लेट्स से इफ देयर इज x अप्रोचिंग इंफिनिटी, then also the formula can be applied. Why? Because see, now something like this. Now this is just reverse. इसका आंसर अभी भी क्या है? E, because it is still 1 raised to power infinity form. Sir, why? Because as x approaches infinity, 1 by x approaches 0, and this approaches infinity, which is very much the same as this, right? So आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? फॉर्म देखना है. What is the impact it is creating? उससे आंसर डिराइव करना है. ठीक है? Alright, let's see this question. This question says 1 plus sin x raised to power 2 cot x. First of all, form. Let's check the form. Sir, 1 बन रहा है बेस में, and yes, cot 0 पे it will be infinity. So it is 1 raised to power infinity form. 1 raised to power infinity form, we have to make the formula 1 plus x raised to power 1 by x, or generalizes 1 plus fx raised to power 1 by fx. But notice here, fx and this fx are not reciprocals of each other. So कोई टेंशन की बात नहीं है. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम दी बेस ओनली. आप यहाँ बेस से स्टार्ट करें. तो आप क्या बना सकते थे? सर मैं इसका रेसिप्रोकल जो है 1 by sin x, आई विल राइट 1 by sin x मल्टीप्लाई sin x, isn't it? ये तो हम कर ही सकते हैं. there is no problem mathematically here. ठीक है, ये लिख दिया. और अगर हम देखें तो अब ये वाली चीज क्या बन जाएगी? what will this be? this will be nothing sir, ये तो e बन गया. और लिमिट कहां चली जाती है? जहां x होता है, याद रखिएगा. तो लिमिट, सिंस नाउ द क्वेश्चन हैज x इन पावर, लिमिट इन अ वे विल बी नथिंग बट इन पावर. गॉट इट? जैकपॉट दिख चुका सब लोगों को? हाँ सर, दिख गया है, बहुत बढ़िया. cot x क्या हो जाएगा? cos x बाय sin x. लो सर, सॉल्व हो गया. sin x कैंसिल, एज x अप्रोचेस 0, cos को तो वैसे भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, कितना बन गया? 1. E square becomes the answer. Lollipops question to understand the basic that how this formula works. Okay, let's see this question. This is a logarithmic question which says मेरा base कैसा है? log 3 with 3x as the input. Sir, form check कर ले पहले. So as limit x approaches 1, when you put 1 here, this will be log 3 with base 3, which is actually sir 1 की तरफ approach कर रहा है. तो ये बात समझ में आती है. और जब बेस 1 होता है लॉग का, ये याद रखेंगे सब, जब बेस 1 हो जाता है तो वैसे ही समस्या बड़ी हो जाती है.
ठीक है, समस्या बड़ी हो गई तो ये बन गई इन्फिनिटी फॉर्म। अब आपको अगर ये नहीं समझ में आया कि सर बेस 1 के नजदीक जाएगा तो इन्फिनिटी कैसे आएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं भी आ रहा ना समझ में, ये तो समझ में आ गया दैट द बेस इज 1, यू स्टार्ट सॉल्विंग बेस। if what happens with base is 1, for base to be 1 you need 1 plus fx raised to power 1 by fx form, where whenever the value of x goes to a, fx should go, fx कहाँ जाना चाहिए सर, fx 0 जाना चाहिए। आपका दिमाग यहाँ कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। सो अगर मैं देखूं मेरा जो इनपुट था वो 1 प्लस एफ एक्स फॉर्म का था ही नहीं, ये कैसा था, लॉग 3 बेस 3 विथ 3x। तो मेरा टारगेट है सबसे पहले टू एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस दिस। या तो एक तरीका होता है हम +1 -1 कर दें, बट देखो यहां पर आपके पास एक हेल्प थी, क्या हेल्प थी, लॉग ए बी क्या होता है, याद आ गया, लॉग ए प्लस लॉग बी, या लॉग ए प्लस बी कितना हो जाता है, लॉग ए बी, जैकपॉट। और अगर बेस सेम हो जाता है, देखो इनपुट और बेस सेम, तो ये क्या बन जाता है सर, दिस कम्स आउट टू बी 1, बन गया 1 प्लस लॉग। तो आपका वो फॉर्मेट आ गया जो आपको चाहिए था, ठीक है, दैट इज दैट सेम फॉर्मेट। अब ये फॉर्मेट कैसा है, 1 प्लस एफ एक्स वेयर द रोल ऑफ एफ एक्स इज बीइंग प्लेड बाय दिस। क्या ये एफ एक्स टेंड टूवर्ड 0 कर रहा है, बिकॉज हमें एफ एक्स तो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। क्यों, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 अगर मैं यहाँ डालता हूं तो इट विल बी log 1 which is 0, jackpot। So question now converts to limit x approaching 1, 1 plus log x with base 3, और मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए था, तो मैंने वो रेसिप्रोकल, एक काम करते हैं, सिंस इट वाज नॉट देयर, तो मैंने वो रेसिप्रोकल लिख दिया कुछ इस तरीके से, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकता हूं। और आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी एक था log 3 with base x। सो अब क्वेश्चन में इफ यू नोटिस दिस, ये कितना बन गया, ये तो e बन गया है ना। बचा क्या आपके पास सॉल्व करने के लिए, log x with base 3 into log 3 with base x। कुछ दिखा क्या तुम लोगों को, ये log का गेम चल रहा है। ओहो सर ये तो सॉल्व हो गया, क्यों, log x with base 3 को मैं लिख सकता हूँ ln x by ln 3 by base swapping property, I introduce base as e। Similarly मैं इसको क्या लिख सकता था, ln 3 by ln x, ये x का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, answer comes out to be e only, this becomes your answer। So this is a very good question if asked in the paper, कि जिससे हम log टेस्ट कर पाए आपका, और 1 raised to power infinity की प्रॉपर्टी is also getting tested। All right, let's see this question। This says sir cos x raised to power cot x, सर इसमें अब की बार 1 plus fx फॉर्म ही नहीं है, तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें तो फॉर्म चेक करनी है। as x approaches 0 cos x will approach 1, तो 1 आ गया बेस, तो मोस्टली ये 1 raised to power infinity फॉर्म बनेगी, which you can check cot 0 infinity की तरफ टेंड करता है। नाउ सर हाउ टू सॉल्व, ये कैसे करें। अब यहां पर आपको फॉर्मूला याद करना है दैट इट इज 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर 1 बाय एफ एक्स, है ना, और यहां पर एफ एक्स शुड टेंड टूवर्ड्स 0, right? This is the formula. So we'll try to make this formula by introducing +1 and -1 in this question। क्या बोला मैंने, +1 और -1, वो कैसे सर, लेट्स सी। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, आपके पास cos x तो था ही, 1 प्लस माइनस ये कर दिया, कोई इशू, नो सर देयर इज नो इशू, आई कैन डू इट एनी टाइम, है ना। तो अब जो ये अंदर बना cos x -1, नाउ दिस प्लेज द रोल ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स बन गया, नोटिस, एंड एज x अप्रोचेस 0, सर क्योंकि cos x कितना हो जाता है 1, तो एफ एक्स इज ऑल्सो अप्रोचिंग 0। दैट मीन्स नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ e बाय सेइंग कि सर इसका अगर रेसिप्रोकल अवेलेबल हो जाएगा देन आई वुड फिट माय जॉब। तो मैंने यहाँ cos x -1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पावर में, and you already had a cot x, right? This is how this question will be converted। And now obviously ये सारा का सारा क्या बन गया, this whole goes to e। बहुत बढ़िया है, सब बॉन्ड होते जा रहे हैं, और अगेन लिमिट इज ओनली टू बी अप्लाइड इन पावर्स बिकॉज पावर में ही रह गया क्वेश्चन। तो cos x -1 into cot x can be written as cos x by sin x। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, नो सर नो प्रॉब्लम टिल हियर। अब आगे कैसे सॉल्व करें, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला लगा लो, 1 माइनस cos x कितना होता था, हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2। तो यहां पर ये क्या बन गया, माइनस
2 sine square x by 2 cos x, and I can write sin x as 2 sine x by 2 cos x by 2. एग्रीड एवरीवन? और ये लिमिट चल रही है अभी, और ये लिमिट है किसकी? ये सारी की सारी इसकी पावर है। ये कैंसिल हुआ, ठीक है। कॉस को कोई दिक्कत? कॉस जीरो, इफ यू पुट दिस इज कॉस जीरो इज 1, नो इशू सर। ये आप पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है, 1, 2 and 2 cancels. So eventually, if you notice, what you will be left out with is limit x approaching 0 minus sine x by 2, which is again nothing, it is pure 0. So ये क्या आ गया? e raised to power 0, which gives you answer as 1. That's it, question over. So the question which was looking difficult at the start is not that difficult. सिंपल है, जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे बनाते जाओगे तो लिमिट्स के सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। Alright, let's see this question, and before we start you have to remember this particular question because this is something which is very repeatable pattern in the examination. फॉर्म देखें पहले, तो अगर हम सब जगह a की पावर 0, b raised to power 0 plus c raised to power 0 करते तो what you would have got 3 and you have a denominator 3, दिख गया, 1 आ गया। So that means this is actually 1 raised to power infinity form, right? This is 1 raised to power infinity form. अब इस 1 raised to power infinity form को कैसे रिजोल्व करेंगे हम लोग? How do we resolve this? अब देखते हैं। तो 1 raised to power infinity form can only be solved by using this basic method. बड़े सारे और शॉर्टकट्स हो सकते हैं बट बेसिक मेथड तो यही है 1। तो मैंने क्या करा, +1 बनाने के लिए अंदर ये कर दिया +1 -1। सर डज इट हेल्प? बिल्कुल इट हेल्प्स। व्हाई इट हेल्प्स? नोटिस यहां पर fx should have been tending towards 0, right? Since you have already found that this particular thing is 1, तो अगर मैं -1 करता हूं that means this whole will be tending towards 0, isn't it? So this whole will tend towards 0, isn't it? Will tend towards 0. Absolutely sir, bang on. That means मैं इसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर लिख दूंगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको अपना थोड़ी देर के लिए fx मान लेता हूं, so you can say 1 plus fx is there. सर आई नीड 1 by fx, है ना, और into f कर देता हूं, तो into 1 by x, just to save my time and space. तो आपको पता है सर ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दिस वुड बी e, bang on. तो सर ये हुआ e raised to power limit x approaching 0, f कितना हो जाएगा? a raised to power x plus b raised to power x c raised to power x by 3 f into 1 by x. सर इसको कैसे सॉल्व करें? Now this is a perfect combination of, if you notice, ये क्वेश्चन किसका कॉम्बिनेशन बन गया है? सर ये 1 raised to power infinity plus एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या देखा जाए आप अभी भी लगाने को यहां पर क्या लगाएंगे? अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सोचो सर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा अभी मैंने एक गलती क्या करी है यहाँ पर, सर fx की वैल्यू गलत लिख ली है हम लोगों ने। हाँ, ये पकड़ना बहुत जरूरी था, ये गलती होती है। क्यों? f मेरा ये नहीं है, f क्या है मेरा? -1। हाँ, दिस इज समथिंग विच वी मिस आउट। अच्छा ये सर आपको पता कैसे चलता है कि आपने गलत कर दिया? नोटिस करो, जब मैंने आई हैव पुट इट x 0 तो डिनोमिनेटर 0 था। सपोजिटली अगर मैं 1 नहीं लिखता यहाँ पर तो ये तो बहुत सिंपल चीज बन गई, 1/0 बन गया। 1/0 तो अनडिटरमिनेट नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, वो तो क्या हो गया? इन्फिनिटी आंसर आ गया। हमें तो चाहिए था 0/0 फॉर्म। दैट इज वेयर आई रियलाइज कि सर यहाँ ऊपर ये न्यूमरेटर, सॉरी दिस शुड ऑल्सो बी 0। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं तो ये 1 बनता, -1, तो मैंने कहीं ना कहीं गलती करी। दिस इज हाउ आई रियलाइज माई मिस्टेक। दैट इज वाई वी से जितना फंडामेंटल क्लियर होगा ना आप, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब ये एक्सपोनेंशियल कैसे बना देख लो। मैंने अगर एलसीएम लेता हूं, अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, एलसीएम लेता हूं तो ये क्या बना? a raised to power x plus b raised to power x plus c raised to power x minus 3, और 1/3 यहां लिख देता हूं, ठीक है। एंड नाउ आई कैन स्प्लिट दिस 3 into 3 parts. गुड जॉब गाइस, गॉट इट, जैकपॉट, एकदम से अब लगा। ओ ओ यस सर। और हर, सिंस देयर इज एन x आल्सो, ये x भी तो है, हर किसी के साथ एक x इन्वॉल्व कर देते हैं। x x x, ओके, 1/3 मत भूल जाना बाहर।
और ये क्या था, लिमिट वाज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सारे के सारे परफेक्ट फॉर्मूले बन गए। क्या हुआ, ये वाला बना ln a, this becomes ln b, this becomes ln c. That is why this is such a good question, because it asks you two fundamental formulas in one question only. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन खत्म करने में अभी भी टाइम है। क्यों ये और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लॉग के भी पूरे फॉर्मूले आपसे पूछ ले जाते हैं। दैट इज व्हाई इट बिकम्स सच ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो समझाता हूँ। अभी हम यहाँ तक पहुंच गए थे, तो ये फॉर्मूला क्या बना, 1/3 ln, अच्छा इनमें a b c लिख सकता हूँ, है ना, ln a प्लस ln b प्लस ln c इज ln a b c। और ये था क्या, दिस एंटायर वाज e रेज टू पावर। ये तो आप देखो, भूल मत जाना कहीं ना कहीं, यू आर सॉल्विंग फॉर e रेज टू पावर। मैंने तो ये सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व करा था। नाउ सर, विल दिस मैच द आंसर? नो, ये आंसर मैच नहीं होगा आपका। क्यों, अब आ जाओ यहाँ पर। ये था e रेज टू पावर 1/3, 1/3 को, जो ये 1/3 आ रहा है, दैट इज दिस। आप अंदर जा सकते हैं। अभी क्यों लेके जा रहे हैं सर अंदर, क्या जरूरत है, आ तो गया आंसर। देखो अभी समझ में आएगा। अब यहां पर लगा फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, कौन सा सर, देखो a रेज टू पावर log x विद बेस a, क्या होता था आंसर, x। वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ लॉग विच विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम। तो अगर ये याद था, तो अब की बार क्या हो गया, सिंस इट इज ln का क्या मतलब होता है, log विद बेस e, तो इसका आंसर क्या आएगा आपकी बार बच्चों, a b c रेज टू पावर 1/3। दिस इज द आंसर ऑप्शन विच विल मैच। गलत नहीं है तुम लोगों का क्वेश्चन अगर आप इसको यहाँ छोड़ते हैं, बट इट विल नॉट मैच विद द आंसर ऑप्शंस a b c and d। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट अस सी दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये कहता है, सर दिख तो समझ में आ रहा है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, बट क्या ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, चेक करो। अगर मैं x को a डालता हूं, ये क्या बन जाएगा, a बाई एक्स विल बी 1, 2 माइनस 1, हाँ बन गया सर, 1 आ गया डिनोमिनेटर में। और अगर मैं x को यहाँ पर a डालता हूँ, a कटा 10 पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 सर इन्फिनिटी होता है। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। नाउ हाउ डू यू सॉल्व 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म? सर हम 1 प्लस एफ एक्स बनाते थे, तो यहाँ पर 2 जो है, अरे वाह सर 2 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अब की बार मेरा f का रोल कौन प्ले कर रहा है, लेट्स से दिस इज द f। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, अभी मैं इसको g ले लेता हूं, जो मेरा न्यूमरेटर ऊपर है फंक्शन। तो मैंने इसको क्या करा, लिमिट जो भी थी 1 प्लस एफ के साथ चाहिए था 1 बाई एफ, एफ और इंटू जी, यही चल रहा है ना। शॉर्ट फॉर्म में देखो, सिर्फ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये पता है हमें कितना हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी ई। और एज वी नो दैट लिमिट कहां चली जाएगी, पावर में। अब सिर्फ f इंटू जी लिख दो। अब बचा 1 माइनस ए बाई एक्स, ये मेरा f था, और g था 10 पाई बाई 2 x बाई ए। ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए सब लोग। अब देखो जो ऊपर नया लिमिट का क्वेश्चन बना, नाउ यू हैव अ न्यू लिमिट क्वेश्चन। ये क्या चीज है, वेयर इट इज टेंडिंग टू, ये कहां टेंड कर रहा है, ये क्या चीज है। फिर से फॉर्म ऑब्जर्व करो, जब मैं x को a डालता हूं यहां पर, तो जो मेरा f है ये तो जीरो की तरफ भाग रहा है, और आगे वाला हमें पता ही है वो किधर की तरफ भाग रहा है, इंफिनिटी। तो यहां इस क्वेश्चन से वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन सॉल्व जीरो इनटू इंफिनिटी फॉर्म। इस वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करा जाता है, इसका टारगेट होता है जब आपको इस फॉर्म के क्वेश्चन मिले, कन्वर्ट दिस इनटू ईदर जीरो बाय जीरो फॉर्म और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म एंड अप्लाई द LH रूल। सर ये कैसे होगा, वो समझो। मैं इंफिनिटी को अगर न्यूमरेटर में था, तो मान लो ये ऐसे था, तो मैं अगर ये लिख देता हूं, तो ये इंफिनिटी ऊपर ही आता है ना न्यूमरेटर में। बट अगर डिनोमिनेटर के पर्सपेक्टिव से देखता हूं, तो ये क्या बन गया, गॉट इट, समझ में आया। तो ये देखा जाए एक्चुअल में जीरो बाय जीरो फॉर्म ही थी। तो इसको यहां पर अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो देखो मैंने क्या करा, ये कुछ ऐसा ले लिया। tan है सर, tan तो मुझे कम समझ में आता है, तो मैंने tan को पहले साइन में कन्वर्ट करा, साइन पाई एक्स बाई 2a डिवाइडेड बाई कॉस पाई एक्स बाई 2a। ठीक है ना, कुछ ऐसे कर दिया। अब अगर आप देखोगे तो वेयर कैन यू सी दैट आपका फॉर्मूला किधर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, वेयर इट इज ट्रेंडिंग, किसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझते हैं। क्या साइन वाले को प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है क्या, नहीं सर, इसको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वाई, इनफैक्ट इफ यू वुड हैव नोटिस, अगर मैं यहां पर x को a डालता हूं,
देन इट विल बी व्हाट साइन पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। तो इसको तो सॉल्व करके लिख ही दो, ये तो हट गया क्वेश्चन से। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकमिंग इक्वल टू 1। नाउ व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज, सर ये एक तो कौन सा, सर दिस इज अप्रोचिंग 0 and this, if I put x equal to a, this becomes cos pi by 2, which becomes cos pi by 2, 0. आ गया सर 0 by 0 फॉर्म, इवेंचुअली 0 by 0 फॉर्म आ गया, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, LH, लॉ हॉस्पिटल्स रूल, दैट इज डिफरेंशिएट। तो अगर मैं इनको अब डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचिंग a, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1 का जो 0 हुआ माइनस a बाई एक्स, x का क्या हो जाएगा, 1 ये बना, ऐसे समझो माइनस ए बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस ए बाहर करता हूं तो माइनस 1/x², ठीक है ना, 1/x का नेगेटिव में आएगा, तो दिस विल बी दिस, ठीक। कॉस का क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस साइन पाई एक्स बाई 2a, एंड डू नॉट फॉरगेट चेन रूल लगेगा। तो क्या डिफरेंशिएट होगा, अभी ये चीज भी डिफरेंशिएट होगी, ठीक है ना, चेन रूल में ये भी तो डिफरेंशिएट होगा बिकॉज इट इज नॉट एक्स। तो ये क्या बन गया, पाई बाय 2a बाहर आ गया। अब देखो क्या फिर से कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, x को a डालो हुआ यहाँ पर, कोई नॉन मैथमेटिकल चीज नहीं सर, a बाई ए स्क्वायर, तो सॉल्व हो गया। x को यहाँ पर a डालो, क्या बनेगा, एक काम करते हैं छोटा करते हैं इसको फिर से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो बना a बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, ये कितना बन जाएगा, x को a डालूंगा तो साइन पाई बाय 2, जैकपॉट साइन 1 आ गया, पाई बाय 2a, खत्म। तो ये कितना बन गया, 1/a पाई 2a और देयर इज -1, तो ये कितना बना, टोटल नेट a और कैंसिल हुआ, -2/पाई, ठीक है जी। बट ये आंसर है क्या, नहीं भाई, एक चीज भूल गए, ये तो हम सिर्फ क्या सॉल्व कर रहे थे, वी वर सॉल्विंग पावर ऑफ e, सो द नेट आंसर, एंड माइंडेड इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, होगा बिकॉज इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, e raised to power -2/pi becomes the answer to this particular question. Alright, let us see this question, and एकदम से ये क्वेश्चन देख के बड़ा सरप्राइजिंग सा लगता है कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, बिकॉज here if you notice again it's a mixture of two concepts. पहली बात अगर आप नोटिस देखें तो ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल रेस टू पावर इन्फिनिटी टॉपिक है, एंड हमें पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का फंडामेंटल पता होता है। व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, that if the degree is same, if degree is same, right, you will get the answer is ratio of coefficients, ठीक है ना, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट आंसर आता है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट आंसर है, तो यहां पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, दैट मींस ओ, अब समझ में आया सर, ये क्या बन गया, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन गया, है ना। अब यहाँ देखो मैंने इन्फिनिटी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम एक काम करेंगे, इसको हम कर देंगे x, डजंट मेक सेंस ना इन्फिनिटी, तो ये x था, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट जरूरी नहीं है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी बनाई मिले आपको, एक ही बार अंदर वाला जो fx है उसमें ही हमें क्या लगाना पड़ जाता है, लिमिट, टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज गोइंग टूवर्ड्स 1 और नॉट। Now that you have realized that it is sir 1 raised to power infinity form, now the fundamental is easy. सर यहाँ 1 plus fx फॉर्म बनाना है ना, तो मैंने इसको 1 प्लस प्लस खत्म, है ना, कुछ इस तरीके से लिखूंगा और -1 यहाँ लगा दूंगा। Now for me this complete this particular box, ये बॉक्स क्या है, fx बन गया, और यहाँ कोई gx था जो कि बहुत सिंपल है, x दिया हुआ है। अब तो आप सब लोग होशियार हो, सॉल्व कर लोगे। अच्छा नोटिस करा आप लोगों ने, वन अनदर थिंग दैट यू शुड हैव हाइलाइटेड, सर यहाँ जनरली 0 होता था, है ना, या a होता था, यहाँ आपकी और इन्फिनिटी आ गया। सो डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मूलाज विद रिगार्ड टू कि x किधर टेंड कर रहा है, हमें हमेशा फॉर्म के ऊपर ध्यान देना है। इफ इट इज 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, विल स्टिल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करते हैं तो ये क्या बनेगा, हमें यहाँ पर वही फंडामेंटल तो बेसिक है सर, 1 प्लस एफ 1/f इंटू जी, तो ये इवेंचुअली आंसर क्या दे देगा हमें, e रेज़ टू पावर लिमिट एफ जी,
समझ में आ रहा है ये तुम सबको? बेसिक फंडामेंटल क्यों? क्योंकि सर दिस इज गोइंग टू बी ई, है ना? तो टाइम बचाएं, ज्यादा ना लिखें, जहां जहां बचा सकते हैं। जी था मेरा एक्स, और ये मेरा क्या था, पूरा का पूरा। फिर से वही गलती मत करिएगा कि सिर्फ आपने पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल लिख दिया। एफ एफ इज -1, राइट? एलसीएम लेना पड़ेगा। अच्छी बात क्या हुई, जब हम एलसीएम लेते हैं, और आपने नोटिस करा अब न्यूमरेटर जो बना, ये वाला जो लिमिट है, ये फिर से क्या बनेगी, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल लिमिट, जिसका आंसर हम ओरली निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें डिग्री पता हो। तो डिग्री के लिए अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करता, न्यूमरेटर था एक्स, देखो जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे इस स्टेप का, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-3, और यहाँ पर से क्या होगा, अब देखो मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, चलो लिख ही देता हूँ यार, कई कई बार लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, -x² प्लस 2x-5, है ना? जैकपॉट दिख गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया x² -2x, तो डिनोमिनेटर का डिग्री कितना हो गया, 2। सर न्यूमरेटर का, उसका भी 2। कैसे सर? ये देखो एक x आउटसाइड और एक x और एक x, तो 4x प्लस 2x कितना हो गया कंबाइंड होके, 6x, और जब वो इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x², और नीचे वाले का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 6/1, दैट्स इट। 6, आंसर हुआ 6 नहीं, e⁻⁶, बिकॉज ये तो पावर थी सारी की सारी, न्यूमरेटर भी नहीं बोलना चाहिए, ये क्या थी, सारी पावर। That is how you solve questions which are based on polynomial by polynomial raised to power infinity. Again, a very specific pattern, and you should remember how we guys have solved these kind of questions. Clear, guys? All right, let us see this question. This says limit x approaching infinity 1 plus a by x. a by x जैसे मैंने लिखा मुझे पता चल गया 0 है. b by x square, it is also approaching 0. That means it becomes denominator में x आ गया, 1 आ गया, और ऊपर आ गया 1 raised to power infinity form. That means this is 1 raised to power infinity definitely. Now we are given that the answer to this particular problem is e square. Then you have to find the value of a and b. तो अब की बार f का रोल कौन प्ले कर रहा? The role of f function is being played by this. So again, by the fundamental, I know that I would have to make 1 plus fx by 1 by f into fx into gx, right? This is the requirement. Where this particular compartment, कौन सा compartment? This whole will be e, है ना? तो ये क्या बन गया? This question can be reduced to solving e raised to power limit x approaching infinity. fx is a by x plus b by x square into g is 2x, right? Now you want the answer to be e square, and you are already getting a 2 here, so I can take this 2 outside and can write this, and then can solve this. A by x plus b by x square into 2, sorry, into x, right? Now you obviously can see that इसका आंसर कितना चाहिए, इसका मतलब सर अपने को 1, जैकपॉट. सो दैट मीन्स अब अगर मैं क्वेश्चन को फर्दर ब्रेक डाउन करता, तो नाउ दिस क्वेश्चन इज दैट मुझे सिर्फ अब ये हटा दो, मुझे इसको 1 प्रूव करना है. दैट्स द न्यू क्वेश्चन दैट यू हैव. ठीक है, तो पहले तो एलएचएस को सॉल्व कर लो. ये x और x कैंसिल होके क्या बना, a प्लस b बाय एक्स लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. ठीक है, आपको इसको क्या चाहिए, 1. तो 1 के लिए आपको अगर ये समझ में आ रहा हो कि यहाँ तो काम हो गया सर, b by x will be tending to 0 only because x tends to infinity. तो b को तो कुछ भी मैं फाइनाइट नंबर ले लेता, तो b को अगर कोई भी रियल नंबर दे दूंगा तो माय जॉब विल बी डन. Whereas for getting 1 as the answer, yes, so sir सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट ऑन a. Now a has to be 1, so that means the values that you were wanting to find, a should be this, b can take any real value, that should not be a problem.